Hello students, this is your chapter number 4, Medieval Architecture, Cities, Merchants and Craftsmen. So open your textbook on page number 19. Medieval Architecture. Indian sculptures, art forms have a unique and long heritage. India is world famous for its rich cultural heritage of art and architecture. Since ancient times, in different periods, a lot of development has been there in architecture, like stupas and stone inscriptions built in different provinces during Mauryan age, Gandhar and Mathura style of stupas during post-Mauryan era, palaces, stupas, pillars, monasteries, mansions and temples during Gupta period were constructed. In the Middle Ages, the Pala, Pratihar, Rashtrakuta, Rajput, Delhi Sultanate and Mughal rulers did a lot of work in the field of architecture, which includes stepwells, lakes, temples and mosques. Different provinces of India have developed architectural heritage in their own ways. तो भारतीय जो स्कल्पचर है, मूर्ति कला, एक अनोखी और लंबी विरासत है, हेरिटेज विरासत। इंडिया पूरे विश्व में अपनी कला और स्थापत्य, आर्किटेक्चर, स्थापत्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दैट इज़ रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए मशहूर है। पुराने समय के आर्किटेक्चर जैसे स्टूपास और स्टोन इंस्क्रिप्शन, पत्थरों के शिलालेख में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। मौर्यन युग, गांधार और मथुरा स्टाइल। मौर्यन युग के बाद महलों, स्टूपास, स्तंभ यानी कि पिलर्स, मोनेस्ट्रीज, मठ, मेशंस, बड़े बड़े घरों और मंदिरों गुप्ता पीरियड में बनाए गए हैं। मध्य युग में, मिडल एज में, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स जो थे, उन्होंने वास्तुकला में बहुत काम किए आर्किटेक्चर में, जिसमें स्टेपवेल यानी कि वाव, वेल यानी कुएं, मंदिरों, तालाब और मस्जिद शामिल है। इंडिया के विभिन्न प्रांतों यानी प्रोविंस ने आर्किटेक्चर की विरासत में अपनी तरह से विकास किया है। देन स्कल्पचर यानी मूर्तिकार। तो आर्ट ऑफ अ स्कल्पचर्स इमेजिनेशन इज़ द फॉर्म ऑफ डेकोरेटिंग रॉक, वुड और मेटल विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। तो मूर्तिकार की जो कला है, उसकी कल्पना जो है, मूर्तिकार के कला की जो कल्पना है, वो पत्थर, स्टोन, लकड़ी, वुड या मेटल, धातु को छलनी और हथौड़े से आकार देता है। चीजल यानी छलनी, हैमर यानी हथौड़ा। आर्किटेक्चर। The word Silpa Shastra is also used for architecture. Architecture basically means construction. Architecture is the construction of houses, towns, wells, forts, minarets, tombs, etc. A person who is proficient in architecture is called an architect. वास्तुकला के लिए शिल्प शास्त्र शब्द का भी उपयोग किया जाता है। आर्किटेक्चर का मुख्य अर्थ है निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर घर, गांव, वेल यानी कुएं, फोर्ट यानी किले, मिनरेट्स यानी मीनारा, देन टोम्स यानी मकबरा आदि का निर्माण करना है। जो आदमी आर्किटेक्चर में कुशल, होशियार है, प्रोफिशिएंट है, उसे वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कहते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। द पीरियड बिटवीन 700 AD to 1200 AD was the Rajput era.
In Rajput era, Nagar style of the temple were prevalent in India. These include the temples of Khajuraho, Lingaraj temple of Puri, and Gop temple of Saurashtra. During this time of Delhi Sultanate, a new style of architecture developed which was associated with Islam, in which Arab style is predominant in the beginning. The three main structures in this architecture are the mosque, the tomb and the रोज़ा. तो 700 AD से 1200 AD का जो समय है उसे राजपूत एरा कहते हैं, राजपूत युग कहते हैं. राजपूत एरा में नगर स्टाइल के मंदिर होते थे. उसमें खजुराहो का मंदिर, पुरी की लिंगराज मंदिर और सौराष्ट्र का गोप मंदिर शामिल है. दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान आर्किटेक्चर की नई स्टाइल विकसित हुई जो इस्लाम से जुड़ी हुई थी. उसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में अरब स्टाइल मुख्य रूप से प्रीडोमिनेंट यानी मुख्य रूप में थी. उसमें 3 मुख्य बनावट थी. वो थी मॉस्क यानी मस्जिद, टोम यानी मकबरा और रोज़ा. Among the main architectural structures of Delhi, Jama Masjid, Qutub Minar, Hauze Khas, Alai Darwaza and Siri Fort are there. The mosque and canals built by Firoz Shah are unique. The Muslim rulers of Gujarat, Bengal and Malwa built many structures during this time. The Bhadra Fort and Jama Masjid of Ahmedabad, Sona Mosque of Bengal are important. The fort of Kumbhalgarh built by Rana Kumbha and Kirti Sthamb or Vijay Sthamb of Chittor are important pieces of Hindu architecture built during that time. तो इनमें से मुख्य वास्तुकला बनावट है वो दिल्ली जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हौजे खास, अलाई दरवाज़ा और सिरी फोर्ट है. फिरोज शाह ने जो मस्जिद और नहर कैनाल बनवाए वो अनोखे हैं. गुजरात, मालवा और बंगाल के मुस्लिम शासकों ने कई सारी इमारत बनवाई. वो है अहमदाबाद का भद्र फोर्ट किला और जामा मस्जिद. बंगाल का सोना मॉस्क वो इम्पोर्टेंट है. कुंभलगढ़ का किला जो राणा कुंभ ने बनवाया और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ का, ये 2 हिंदू आर्किटेक्चर के उस समय के इम्पॉर्टेंट नमूने हैं, पीसीज है. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड हलुलेश्वर टेम्पल ऑफ कर्नाटका आर सम ऑफ द मोस्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 13th century. तो 13वीं सदी के कोणार्क का सूर्य मंदिर और कर्नाटक का होसलेश्वर मंदिर ये खास तरह के आर्किटेक्चर है. द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड नियर बे ऑफ बंगाल इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 13th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नरसिंहवर्मन I of Gang dynasty. This chariot temple was built like the chariot of the sun, pulled by 7 horses. It has 12 wide wheels. This temple is also known as Black Pagoda because it is built of black stone. The picture of Konark Sun Temple is given on the right hand side. You can see it. तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में बे ऑफ बंगाल के पास स्थित है. ये मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था जब किंग नरसिंहवर्मन I जो गंग डायनेस्टी का था उसका शासन था. ये रथ मंदिर चैरियट टेम्पल रथ के जैसे बनाया गया है जैसे कि सूर्य का रथ 7 घोड़ों खींच रहे हो. उनके 12 बड़े व्हील से इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं क्योंकि वो काले पत्थरों से बना है. नाउ टर्न योर पेज नंबर 20. Temples in North India are characterized by their rounded pinnacles and columnless compartments
mandaps. Temples in South India were built in conical spires. Gopuram temple entrance tower is the specialty of the temple in South India. Temples are characterized by sanctum, centurium, antral, mandap, Srinagar, चौकी और मुख मंडप. Even प्रदक्षिणा path is also there. तो नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत के मंदिर की विशेषता यह है कि उनके जो शिखर है वो गोलाकार है और मंडप जो है वहाँ जो स्तंभ कॉलम नहीं है, जबकि साउथ इंडिया के मंदिरों के शिखर शंकु आकार कोन शेप, जो आइसक्रीम का कोन आता है वो शेप के हैं. और इन मंदिरों की खासियत है उनका प्रवेश द्वार एंट्रेंस गेट, जिसको गोपुराम कहा जाता है. मंदिरों में गर्भगृह, सेंटम, अंतराल, मंडप, श्रीनगर चौकी, मुख मंडप से उसका वर्णन किया जाता है. वहाँ पे प्रदक्षिणा के लिए रास्ता भी बनाया है जिसे प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं. Some of the important temples of this period include chariot temples built during Pallava period and Rajrajeshwar temple at Tanjore, which was considered to be the tallest temple of their time. तो कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिर इस समय में जो है उसमें चैरियट टेम्पल जो पल्लवा के समय बनाया गया था और तांजोर का राजराजेश्वर मंदिर जो उस टाइम का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता था. द मुगल आर्किटेक्चर वॉज यूनिक. अ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन हुमायूंस टोम. मुगल का जो आर्किटेक्चर था वो अनोखा था. उसका उदाहरण हम हुमायूं के मकबरे को देखकर कह सकते हैं. द मुगल एम्परर अकबर built the fort of Agra and the fort of Fatehpur Sikri. The tomb of Sasaram of Sher Shah Suri is an important architecture of this time. The Mughals started the tradition of developing gardens. These include the Nishat Bagh in Kashmir, the Shalimar Bagh of Lahore, and the Aram Bagh of Agra. Now on the right hand side you can see the fort of Agra. तो द मुग़ल एम्परर अकबर जो थे उसने आगरा और फतेहपुर सिकरी में फोर्ट बनवाए. ससाराम का मकबरा ये वास्तुकला इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है उस टाइम का. मुग़लों ने बगीचे को, गार्डन्स को विकसित करने का एक रिवाज चालू किया और उन गार्डन्स में है कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और आगरा का आराम बाग. The best specimen of Mughal architecture is the Taj Mahal built by Shah Jahan. Taj Mahal, constructed on the bank of river Yamuna in Agra, Uttar Pradesh, is one of the 7 wonders of the world. It was built by Shah Jahan to commemorate his Begum Mumtaz Mahal. Taj Mahal glorifies the architectural heritage of India and is becoming a center of attraction for tourists all around the वर्ल्ड. तो मुग़ल स्थापत्य आर्किटेक्ट का सबसे अच्छा नमूना शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया ताजमहल है. ये ताजमहल यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के आगरा में है और दुनिया की 7 अजायबी में से एक है. ये शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था. ताजमहल हमारे देश के आर्किटेक्चरल हेरिटेज को गौरवान्वित करता है, गौरवान्वित करता है और पूरी दुनिया के जो पर्यटक है, टूरिस्ट है, उसको आकर्षित करता है. इन एडिशन टू दिस, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ. ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल वर बिल्ट इन दिस फोर्ट विच इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन. Its decoration is a wonderful combination of gold, silver and precious stones. It was in this fort that Shahjahan got built the artistic Mayurasan. तो इसके अलावा शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया और दूसरी सुंदर इमारतें जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल वो भी
बनवाए जो लाल पत्थरों से बने हैं। उनकी सजावट सोने, चांदी और कीमती पत्थरों को मिला के की है और इस किले में शाहजहां ने मयूरासन पीकॉक थ्रोन भी बनवाया है। The Red Fort, the picture is given below. Now page number 21. During this time, the best architectural piece, the Golden Temple of the Sikh sect, was built in Amritsar. तो उसी टाइम पे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो सिख समुदाय का है वो भी बनाया था। वो भी सबसे अच्छा आर्किटेक्चरल पीस है। द पिक्चर ऑफ द गोल्डन टेम्पल इज गिवन ऑन पेज नंबर 20. Now 21 page. Architecture of Gujarat. During the Solanki rule and Sultanate period in Gujarat, a very high standard architecture was constructed. Solanki architecture includes the renovation of the temple of Somnath by Bhimdev in 11th century and the Sun temple at Modhera. तो सोलंकी शासन और सल्तनत पीरियड में गुजरात में बहुत बड़े आर्किटेक्चर बनवाए गए। सोलंकी आर्किटेक्चर में सोमनाथ का मंदिर का रिनोवेशन यानी नवीनकरण भीमदेव के द्वारा 11वीं सदी में और मोटेरा का सूर्य मंदिर शामिल है। द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन प्रभास पाटन नियर वेरावल. Somnath is a very ancient, rich and important center of Saivism. Today, only the location of the old temple can be seen. The new temple was built in 1951. Somnath is one of the 12 most sacred Jyotirlingas in India. तो सोमनाथ मंदिर वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। सोमनाथ एक प्राचीन, समृद्ध और इम्पोर्टेंट केंद्र है शिव भक्ति का। आज हम सिर्फ पुराने मंदिर का लोकेशन देख सकते हैं। नया मंदिर 1951 में बनाया गया। 12 पवित्र लिंगों में से सोमनाथ एक है जो कि इंडिया में, जो कि हमारे गुजरात में है। द ऊपरकोट फोर्ट इज़ इन जूनागढ़ सिटी. The original name of Upperkot was Giridurg. Rakhegnar provided water facilities by constructing Adikhadi step well and Naugan well. A saying is there, if you have not seen Adikhadi step well and Naugan well, your life is worthless. ऊपरकोट किला जूनागढ़ सिटी में है। ऊपरकोट का असली नाम गिरदुर्ग है। राखेगनार ने पानी की सुविधा अधिखदी वाव, स्टेपवेल यानी वाव, और नवगन कुएं बना के की थी। एक कहावत है कि अगर आपने अधिखदी वाव और नवगन कुआं नहीं देखा तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। लाइफ इज़ वर्थलेस. द सन टेम्पल एट मोधेरा इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भीमदेव वन ऑफ द सोलंकी एरा. The east entrance of the temple was designed in such a way that the first rays of the sun radiated to Sanctum Sanctorum at the far end of the temple and fell on the gem in the center of crown of sun's god idol. As a result, the whole atmosphere seems to be filled with divinity. 12 different ideals of the sun can be seen in this temple even today. There is a total of 108 small temples around the water tank outside the temple, which creates a beautiful view when the lamps are lit at dawn and dusk. तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा ज़िले में सोलंकी युग के भीमदेव वन राजा के शासन में बनाया गया था। मंदिर का पूर्व का द्वार ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि सूरज की पहली किरण जो गर्भगृह में पड़ती है, मंदिर के अंत में वो सूर्य भगवान की मूर्ति पे केंद्र सेंटर में जेम है उस पर गिरती है। इसी वजह से वहाँ का जो पूरा वातावरण है वो पवित्र लगता है। आज भी ये मंदिर में 12 अलग सूर्य की मूर्तियाँ देखी जाती हैं। मंदिर के बाहर
पानी का तालाब जैसा है जिसके आजू बाजू 108 छोटे मंदिर हैं, जो शाम होते ही उन सभी मंदिरों में दिया जलता है। तो आप सोचिए कि उस समय का नज़ारा कितना सुंदर होगा। Now students, the rest of the chapter will continue in the next video.